Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. और खेलना चाहते हैं हम। खूब खेलो साथ में है हम। और खेलना चाहते हैं हम। खूब खेलो साथ में है हम। हम 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 खेल में ही मस्ती है, खेल तंदुरुस्ती है। खेल से आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। मत डरो साथ देंगे हम। हम 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 चांद छूना चाहते हैं हम। उड़ चलो पंख देंगे हम। खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा। खेल से उड़ान देंगे हम। हम 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 खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है। खेल से ही मैं बनेगा हम। हम 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 खेल से मुस्कान पाए हम, खेल से पहचान पाए हम। दुनिया को हिलाएंगे, खेल के दिखाएंगे। हम नहीं है किसी से कम। हम 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 खेलो इंडिया, साथ में हैं हम। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
है। मैं कक्षा 5वीं दा में पढ़ती हूँ। फूलों का हार ले पहनाने आए हम, फूलों का हार ले पहनाने आए हम, कर ले स्वीकार आज स्वागत हमारा, कर ले स्वीकार आज स्वागत हमारा। फूलों का हार ले, हार ले, फूलों का हार ले, हार ले। आज सिरंगी क्षमा हरदम आती रहे, आज सिरंगी क्षमा हरदम आती रहे। महफिल बाहर नया साज सजाती रहे, महफिल बाहर नया साज सजाती रहे। आपके आशीर्वचन पाने हम आए हैं, आपके आशीर्वचन पाने हम आए हैं। कर ले स्वीकार आज स्वागत हमारा, कर ले स्वीकार आज स्वागत हमारा। फूलों का हार ले, हार ले, गीतों के भाव से भर कर हम लाए हैं, गीतों के भाव से भर कर हम लाए हैं। श्रद्धा के सुमनों से राह हम सुना रहे हैं, श्रद्धा के सुमनों से राह हम सुना रहे हैं। आपके आशीर्वचन पाने हम आए हैं, आपके आशीर्वचन पाने हम आए हैं। कर ले स्वीकार आज स्वागत हमारा, कर ले स्वीकार आज स्वागत हमारा। फूलों का हार ले, हार ले, फूलों का हार ले, हार ले। Good morning everyone all present here. Today is a great pleasure for us to have the Honorable Chief Guest, the Honorable Principal Sir, respected teachers, humble parents and my dear friends. We all are gathered here today for this event that is going to fill every one of us with oodles of power and self-confidence. The event which we are talking about is virtual celebration of National Sports Day 2020. An account of birthday of Major Dhyan Chand, hockey wizard, the legend player of Indian hockey. This year, due to pandemic of COVID-19, KBS has organized online National Sports Day celebration 2020 in a befitting manner in all Kendra Vidyalaya so that everyone shall attend the same. COVID-19 had a great impact on the world and our country too. But we are fighting with this pandemic like true warriors and are on our way to recovery from it. We do not let this virus to shake our sportsman spirit, and that's why to keep every one of us motivated, we are organized this event. We are going to organize a quiz competition for class 5th to 12th and also declare the result of drawing and painting competition at the end of the program. Now, a very warm welcome to our Honorable Chief Guest, Mr. Viren Singh, Deputy Commandant of Indo-Tibetan Border Police, current coach of National Team of Judo. He is a Commonwealth Games medalist and 10 times National Champion of India. Now we would like to hand over the mic to Mrs. Daisy Varma. Now we would like to hand over the mic to our sports teacher, Mrs. Daisy, to share her views on the importance of National Sports Day. Good morning, distinguished guests, our worthy Principal Sir, Vice Principal Sir, Vice Principal Madam, parents, teachers and my dear students. It is my pleasure to welcome you all to the virtual celebration of National Sports Day. On behalf of Kendriya Vidyalaya, AFS, Tughlakabad, I would like to extend a warm welcome to our chief guest. We are indeed grateful for your gracious presence. As we all knew, due to outbreak of COVID-19, we all are confined in our respective homes for safety reasons. But no such challenges can stop the spirit of sportsmanship in us. So, let's know about our National Sports Day. August 29 is
celebrated as the National Sports Day in India. It is the birthday of the hockey wizard Major Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever to have graced the game of hockey. Hockey always has a special place among Indians. Hockey is our national game. Our generation sometimes look back with a sense of disbelief about the golden era of Indian hockey, when India won 3 Olympic gold medals in field hockey in 1928, 1932 and 1936. That era was led by none other than Dhyan Chand, who scored 33 goals in 12 matches. Dhyan Chand was born in Allahabad to Someshwar Dutt Singh. Dhyan Chand joined the Indian Army at the age of 16 and never played hockey during his childhood. Slowly, he was attracted to the game and progressed quickly to represent India. In 1936 Berlin Olympics, Dhyan Chand displayed unbelievable skills with his hockey stick that a German newspaper carried a banner headline, "The Olympic complex now has a magic show too," and visit the hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand in action. There is also a legendary story saying that his skills were so good and godly that in one instance his opponents went to physically check his hockey stick. If there is a special glue which stick the ball to his stick. He scored over 400 international goals in his career from 1926 to 1948, while scoring nearly 1,000 goals in his entire career. After putting his stamp on international hockey arena and having served his country to reach its pinnacle of glory multiple times, Dhyan Chand passed away on 3rd December 1979. He remains a legendary figure in the Indian and world hockey. The most noted memorial for him is the Major Dhyan Chand Award, the highest award for lifetime achievement in sports and games in India. Indian Postal Department also paid tribute to Major Dhyan Chand and issued stamps in his honor. As a tribute to him, the National Stadium of Delhi was also renamed Major Dhyan Chand Stadium, Delhi. And the Government of India has decided to celebrate his birthday as the National Sports Day since 2012. It is organized every year in the Rashtrapati Bhavan, and the President of the country gives National Sports Awards to the respective winners who have enhanced the value of the tricolor flag all over the world. Under the National Sports Day, players and former players are honored with many awards like Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award and Dhyan Chand Award. Along with all these honors, Dronacharya Award is also given on the day. In 2019, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has launched Fit India campaign on the occasion of National Sports Day. The nationwide campaign aims to encourage the people to inculcate physical activities and sports
in their everyday lives. Sports is a very important activity for all of us, especially for our dear students. Playing sports help us to inculcate multiple qualities like sense of togetherness, leadership skills, stamina, physical strength, teamwork, goal setting, and discipline. The qualities which help us to excel in life. Fit and healthy individual lead to a healthy society and a strong nation. National Sports Day is not only a tribute to one of the greatest in the game, it is also reminds us the importance of sports in our life. Let's take a pledge to include some kind of sports or activities in our daily routine. Thank you. आपने जय अपने हिंद। बहुमूल्य सुझावों से हमें बहुत लाभान्वित किया है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं और आपको यह यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम को बखूबी शामिल करेंगे तथा औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। Now I would like our principal sir to give some knowledge about sports and games. क्रीड़ा दिवस श्री ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को। आज कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस वैश्विक महामारी में पूरा विश्व त्रस्त है, इसलिए खेलकूद जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यदि हम फिट हैं तो स्वस्थ हैं तो ये रोग हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ दौड़ना चाहिए, कुछ योगा करना चाहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम और मेडिटेशन भी करना चाहिए। यदि मेडिटेशन से हमारा मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ने से हमें सकारात्मक सोच विकसित होती है जो कि हमें किसी प्रकार का भय कोरोना का नहीं होगा। फिर भी हमें बचाव रखना है। बाहर निकलते समय हमें मास्क और सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी बना के रखना है। साथ ही हमें तुलसी और गिलोय और दालचीनी और अदरक और 1 गिलास पानी में डाल करके 10-12 तुलसी की पत्तियां डाल करके इसको करीब 10 मिनट तक पकाएं। आधा बन जाने पर उसको हम पिएं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे कि कोरोना हम पर हावी नहीं होगा। और सुबह उठ करके प्रतिदिन हमें 1 से सवा लीटर तक पीने योग्य गुनगुना पानी पीना चाहिए बिना रुके। और उसके बाद हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने कमर से झुक करके अपने हाथों को ज़मीन में टच करना है 2-3 बार। इसके बाद जो है मैं करके दिखा भी सकता हूँ कि अगर ये ऐसा करें तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये क्रिया कम से कम हम 3 बार करें। इसके साथ ही हम इस हाथ को बड़ी तेजी के साथ इसके बाद हमें अपना फ्रेश हो जाएंगे। इसके बाद अपना ब्रश वश करके मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। कम से कम 3-4 किलोमीटर तो प्रतिदिन चलना ही चाहिए, सुबह शाम मिला करके। इसके बाद अनुलोम विलोम और प्राणायाम, और समय मिले तो 24 घंटे में
आधा से लेकर के 1 घंटे तक मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कई प्रकार से हो सकता है। इसमें आपका योग निद्रा है, रैकी है, विपश्यना है, जिसके द्वारा आप काफ़ी कुछ अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकते हैं और इससे कि आप दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिल जाएगी और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। आप स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, जिससे कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने जो सीनियर हैं उन सब के साथ आप संतुलित व्यवहार कर सकते हैं, जो कि आज समाज के लिए बहुत उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि ये कोरोना के लिए बहुत उपयोगी होगा और हम सब फिट इंडिया, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही अभियान है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, जीवन को जी सकता है। दुखी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए आओ हम सब लोग फिट इंडिया को सफल करते हुए और श्री ध्यानचंद जी के जो जन्मशती है या जयंती जो मना रहे हैं उसको कारगर करें। धन्यवाद। जब कभी हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं तो बहुत सारी विधियां हैं। आप पानी पीजिए, उल्टा काम कीजिए, उल्टा काउंटिंग कीजिए या फिर आप संगीत सुनिए। तनाव का मतलब है कि उस स्थिति से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना। कोई भी काम करें, खेलें कूदें, नहीं है तो अपने जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर जंप करें, नहीं तो सबसे अच्छी तरीका है लंबी लंबी सांसें लें, जैसे कि ऐसे कर सकते हैं। और जितनी आपकी सामर्थ्य है, इससे आपके लंग्स खूब एक्सपांड होंगे, खूब आपके लंग्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोरोना का अटैक किसी भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ये करके आप अपने आप को बहुत तनाव मुक्त हो सकते हैं, जो कि आपके कार्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। गुड मॉर्निंग केवी तुगलकाबाद के सभी प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद बेनीवाल, नेशनल कोच, आज आपके सामने अपने विचार साझा करना चाहता हूं। आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मना रहे हैं। ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इस हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे। उनका आज जन्मदिन है। उन्हीं से प्रेरित होकर हमने आज इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने भी ऐसे ही खिलाड़ियों से प्रेरणा लेते हुए अपने खेल जीवन को शुरू किया। कड़ी मेहनत और लगन से मैंने नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी बना और अनेकों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए हैं। तो बच्चों, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने जीवन में किसी न किसी खेल को ज़रूर अपनाएं तथा अपने साथी को भी खेल में भाग लेने की प्रेरणा दें। जय हिंद, जय भारत। The only way to prove that you are a good sport is to lose. Now I would like to invite Apurva Raj of 7th Shift 1 to share her feedback on the topic COVID-19 fitness. Sir, for your kind words. The only way to prove that you are a good sport is to lose. Now I would like to invite Apurva Raj of 7th Shift 1 to share her feedback on the topic COVID-19 fitness. There is no limiter to success. You have to take the steps. A warm greeting to all of you present here. I am Apurva Raj, studying in class 7B of Kendra Vidyalaya, Tughlakabad. Let me thank you all for giving me such a wonderful opportunity to express my views on COVID-19 fitness at home. As we all know that the whole world is suffering from pandemic known as COVID-19, and so we are confined in our homes for our safety, and a distance is made between teachers and students. In this very critical situation, the most important thing
our health and fitness as everyone is working from home. Many people are not able to express their views and they are suffering from depression and consequently they are committing suicide. So, our school is focusing on the importance of the fitness in view of government guidelines. Yoga is one of them. On International Yoga Day, our school tried to tell some benefits of yoga by telling us some good yoga asanas and organizing quiz. Our weekly yoga and exercise classes are also taken by fabulous teachers. Our school is also focusing on running as it is a very good way to maintain fitness. And so we are instructed to run at home only, which is good for safety also. Health and fitness are very important for a happy and successful life. We can live our life with its fullest extent only if we are healthy. If the body is fit, the mind is hit, said by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. He had so launched a nationwide movement called Fit India Movement to encourage people to stay fit and healthy. He wants us all to devote some time for physical activities and sports so that India becomes a fit nation. Achieving a good health is not easy today because of the current pandemic, but we need to take this as a challenge and live our life in a healthy way. Exercising regularly, doing yoga and eating a nutritious and hygienic food is a necessary for good health. We are told many times by the government and studied at school that we should always eat hygienic food and stick to homemade food as much as possible. Even Gautam Buddha had said that every person is the author of his own health and disease. So let's never ever ignore our health. Last but not least, I would like to say that think positive, stay healthy. Thanks a lot again. For enlightening us with this much information. Successful people maintain good habits and go hand in hand with success in every area of endeavor which develops a reputation. The way one works determines the quality and quantity of rewards. Among us, we have one such great person today. Yes, now we request our Honorable Chief Guest, Mr. Virender Singh, DC ITBP, to motivate us with the continuous function. I would like to call Mr. Vijay Meena, PGT Hindi, to guide us about fitness and आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, आज के मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडेंट ITBP, हमारे सभी साथी शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन मेरे लिए मिक्स्ड फीलिंग वाला है। यानी मुझे खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि राष्ट्रीय खेल दिवस इतने बड़े लेवल पे मनाया जा रहा है, और दुख इस बात का है कि इतना बड़ा आयोजन भी हम अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है कोरोना महामारी। कोरोना महामारी के चलते ही हम सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ये आयोजन करवा रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है और हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस से मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं, तो हमारा डेली रूटीन वर्क है, उस डेली रूटीन वर्क को करने के बाद अगर हमारे पास इतनी एनर्जी सेव रहती है कि हम इमरजेंसी कोई आ जाती है उसको भी फेस कर लें और उसके बाद हमारा जो खाली टाइम है उसको एंजॉय कर लें, तो हम फिजिकली फिट कहलाते हैं। और अगर हम फ्री ऑफ डिजीज, हमारी बॉडी फ्री ऑफ डिसीजेज है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम हेल्दी कहलाते हैं। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बहुत मोटा हो गया तो वो हेल्दी हो गया, वो एक गलत फहमी है। हेल्दी का मतलब फ्री ऑफ डिसीजेज, मतलब आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं हो। तो दोनों के डिफरेंट थिंग्स होती है, फिजिकल फिटनेस और जो हेल्दी, ठीक है। अब स्पोर्ट्स के थ्रू इनको हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको हेल्दी
स्लीप जो है, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, आपको स्वस्थ नींद चाहिए। उसके बाद आपकी बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट हो वो आपको लेनी चाहिए। उसके बाद आती है फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन। तो अभी तो आपको पता है कि आप टीम गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हम सुबह उठ के वॉकिंग कर सकते हैं, हल्की रनिंग कर सकते हैं। फास्ट रनिंग को मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि हम आजकल मास्क लगा के रनिंग और वॉकिंग करते हैं, तो मास्क लगा करके हम प्रॉपर ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाते, तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हम फास्ट रनिंग ना करके हम वॉकिंग करें या फिर स्लो रनिंग, जिसको जॉगिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं। रोप जंप कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। यानी अगर फिजिकल फिटनेस और आप वेलनेस बढ़ गई तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, मजबूत होगी। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत है तो आप पे कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इस दौर में, ये कोरोना महामारी का दौर है, इस दौर में आपको फिजिकली फिट होके, हेल्दी होके और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाकर रखना है। इसके लिए मैंने आपको बताया ही है क्या क्या करना है। आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। साउंड स्लीप, प्रॉपर नींद, 8 घंटे की नींद। और आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल गेम्स खेल सकते हैं, योगा परफॉर्म कर सकते हैं। इन सब के थ्रू आप अपनी फिजिकल फिटनेस को बढ़ा के रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि जब स्वस्थ होंगे तो ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। Thomas sir for your words of wisdom. It is a well-known fact that any form of physical exercise is good not only for one's body but their spirit as well. Playing a sport is a winning combination both figuratively and literally. After continuing the event, there are some video clips for our entertainment and keeping our enthusiasm high. पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे
और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजल्स समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को
आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं।